शायरी से ही कहना चाहूँगी कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे सबके लिए एक गौरव की बात है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट अमृत महोत्सव। अर्लियर 2 years because of pandemic we never had any program, and we had to have earlier before pandemic we used to have only for half an hour 45 minutes. This year we thought let the whole country is celebrating, so we should celebrate in a great large way in a great way. So we said okay, I told the students and teachers, go ahead and prepare a program for 2 hours, and they have done a lot. And plus we are proud of our star achiever महविश, and today we are going to felicitate him. महविश मैम, सबसे पहले आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज रॉयल कॉलेज में आपने फ्लैग होइस्ट किया है, फिर आपका आज फेलिसिटेशन होने वाला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? It is an honor to be here. The message that I want to give is that we all need to work hard to make our family proud, to make the nation proud, and we should work towards serving this nation in whatever way we can. यूथ्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Youth- जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको स्पेशली। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि do not give up. There are a lot of failures in this journey, but those failures build up your character, build up your knowledge. So just don't give up. I, on behalf of the management of Royal College, would like to send only one message to all watching this, that it is very important that we all understand the struggle by which we have received this today's day, that is we are having the independence. So we should not forget the people who have given their lives so that we could enjoy this fruit. And today at Royal College, we have all students of school, college, Urdu school, English school, teachers, non-teaching staff, all gathered here to celebrate this 75th Azadi Ka Amrut Mahotsav. And we, on this occasion, we are felicitating our student Tak Mavis, who has cleared her UPSC examination, and this was the best opportunity. We could felicitate her, and she'll be hoisting the national flag also. We have called her parents also. We should understand the importance of the freedom and the value of the freedom, and we should not waste our time in this unnecessary fights between the different religions. Ours is a secular nation, and we should be proud that the whole world looks upon us as a secular nation, as a democratic country. So I request you all to see that you inculcate this in your children and in your neighborhood. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं सभी को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये हम जो आज अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ये ना ही सिर्फ आज़ादी का है अपनी, बल्कि ये अमृत महोत्सव हम हमारे स्टूडेंट की कामयाबी का भी बना रहे हैं। क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट माविस तक ने इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम उसने दिया और उसमें उसका रैंक 386 आया है और वो आईपीएस सर्विस के लिए सिलेक्ट हुई है। तो इसलिए ये हमारे लिए डबल महोत्सव है, आज़ादी का भी और महविश के सक्सेस का भी महोत्सव बन रहा है। और इसके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम किए, इसमें एनएसएस, एनसीसी और हमारे स्टूडेंट्स काउंसिल के ज़रिए सभी बच्चों ने मिलकर इतनी मेहनत की है। पिछले 10 दिनों से मेहनत कर रहे बच्चे लगातार, और आपने देखा होगा कि इतना शानदार प्रदर्शन बच्चों की तरफ से हुआ एनएसएस, एनसीसी और दूसरे सब स्टूडेंट्स के साथ में। तो इसी के साथ मैं आप सबको दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ आज़ादी की। धन्यवाद। First of all, happy independence to all of us. We have completed 75 years of our independence. Our efforts as a college is to inculcate right attitude, right values and patriotism. We have a very strong NSS and NCC units, and we have celebrated, and you must have seen our students performing feats on this particular day and celebrated our 76th Independence Day. एक शायरी से ही कहना चाहूँगी
कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी कॉलेज में भी ये दिन मनाया जा रहा है, बहुत ही ज़ोर शोर से सब मना रहे हैं। मेरे ख़्यालों में अगर कोई सच्चा देशभक्ति है तो वो अपना काम अगर ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी लगन से करे तो वो ये एक सच्चा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि सोशल मीडिया की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप लोग कहते हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा है, तो आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट है ना, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मुझे अपने देश पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। कन्याकुमारी से लेके आप देखिए जम्मू कश्मीर तक, आप देखिए जैसलमेर के रण से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक ट्रेडिशंस है, अनेक रिचुअल्स है, एंड वी ऑल लिविंग हियर हैप्पीली। डिस्पाइट ऑफ हैविंग 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन, इस देश में कुछ तो बात है जो हर किसी को 2 वक्त का रोटी दे रहा है, हर किसी को आशा दे रहा है, हर किसी को आशाएं दे रहा है। सो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। आज हम 15 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां साल हिंदुस्तान की आज़ादी का। इंडिया अटेंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1947 after a struggle of nearly 200 years. Since then, we are celebrating this year. On 12th March 2021, Prime Minister Narendra Modi launched Azadi Ka Amrit Mahotsav, which will be celebrated for the span of 75 weeks ending on 15th August 2023. This government initiative will focus on the history, culture and development of our future. And several events, programs, campaigns have been launched under this initiative at the national as well as at the state level. And one of the very popular campaign under the Azadi Ka Amrit Mahotsav is Har Ghar Tiranga. PM Modi ji has urged Indian citizens to hoist our tricolor at their house, at their rooftop, balconies, etc. to spread the color of patriotism from 13 to 15 August 2022. Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of this country who have been instrumental in bringing India to the evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable the vision of Prime Minister, which he fueled with the spirit of आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जर्नी ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, commemorates works and achievements since its independence. It also beginning the celebration of Vision India at 2047. This festival encourages us to discover our hidden strength and promote us to take systematic, synergetic action and regain our rightful place in the world. It is a good fortune that we are born and witnessing this historic event in India. India is touching now the great heights of progress. This festival is nothing but an attempt to thank those people who have taken the last breath to give what we are enjoying today. It is a time to remember that freedom is not to be taken lightly. The martyrs who have sacrificed their life to achieve it. We shouldn't waste the sacrifices. Thanks. जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये जो मुहिम है बहुत ही अच्छी मुहिम है। इसके ज़रिए हर एक घर तिरंगा लाने से हम सब में जागरूकता आएगी और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा होना चाहिए, जो हमें दिल से निकलनी चाहिए। सो हम सारे देशवासियों को, सबको, हमारे सबकी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। अमृत है ये आज़ादी का,
हर युवा एक घुट पिएगा। अमर रहेगा देश मेरा, हर दम तिरंगा ही जिएगा। We hoist the tricolor in the sky so high. Forever lives my country for the prize if I die। मैं मिसबा हैदर, मैं अदिति मेनन मैं यूसुफ शेख, और मैं बुशरा खान, हम सभी रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट्स और सभी मूल्यवान सदस्यों की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। As the sun rises in the morning of 15th August, we all rise to pay our tributes and honor to our country and its tricolor. We all stand here to take a pledge for the devotion that we have for our country. भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है और क्यों है? जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं। इसकी खुशी में और हमारे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सॉल्ट सत्याग्रह का सम्मान करने के लिए हमारे भारतीय सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में शुरू किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब है स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त प्रेरणा का अमृत। आज़ादी का अमृत यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने जाता है। When we think of the era of British rule when millions of people were waiting for independence, this makes the 75 years of independence more significant. The Amrit Mahotsav of Azadi will inspire us to keep the dreams and duties of independent India and to move forward with all the respect and hope. कोरोना की इस महामारी ने हमें 2 साल तक बाहर तो नहीं आने दिया, मगर आज इतने समय के बाद जब मैं अपने मित्रों की नज़रों में देख रहा हूँ, मुझे हम सब में देश प्रेम की सद्भावना दिख रही है। कुछ कर जाने का, कर गुजरने का जोश दिख रहा है, और यही जोश देखकर मैं बड़े ही गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे देश का युवा, ये युवा जो मेरे साथ है, ये देश की भागदौड़ संभालने के लिए बड़ा उत्सुक खड़ा है। तिरंगा is a symbol of national pride and honor for every Indian. To further honor this, our Prime Minister Shri Narendra Modi started the Har Ghar Tiranga. Har Ghar Tiranga fills the feelings of patriotism in every Indian, and every Indian gets a chance to hoist the national flag at their homes from 13th August 2022 to 15th August 2022. इसके आगे ये कहना चाहूँगा कि गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहाँ को ये बताएंगे। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहाँ को ये बताएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे। On this auspicious occasion, we would like to pay our homage to the Bapuji and all the great personalities who have sacrificed their lives for the freedom of India and our country. आज़ादी का महोत्सव हम सबको मिलकर बनाना है। जन जन की भागीदारी से हम सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आखिर में हम यही कहेंगे कि मन में रहे ना बैर किसी के, ना कोई किसी से खिलवाड़ करे। हर छोटे बड़े को मिले समानता, न कोई किसी से भी डरे। हर घर फहराएंगे तिरंगा, सब तिरंगा का अभिमान करें। आज़ादी के इस अमृत अवसर पर आओ नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद। वेदांत जी, आपने बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जवान जो होते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं कि ये जवान यहाँ शहीद हो गए हैं। मैं इतनी अपील करना चाहूँगा कि बस उन्हें नंबर ना समझे, उन्हें अपना साथी समझे, अपना दोस्त समझे, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। वो केवल नंबर नहीं है, बल्कि वह हमारे बीच में से हैं। उन्हें भी दुख होता है, उनका भी परिवार होता है, उनके भी अपने होते हैं जो उनके जाने से रोते हैं, बिलबिलाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उसे न्यूज़पेपर में पढ़कर केवल एक संख्या समझकर छोड़ देते हैं। बस मेरी ये अपील है कि हम पूरा भारत एक है, यह समझकर हर सैनिक को भी अपना समझे, अपने परिवार का भाग समझे, और उनके लिए अगर दुख ना हो तो कम से कम शोक ज़रूर मनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सरोज मेहरा, जयेश नागरिक संगठन की चेयरमैन हूँ। आज हमें जैनब मैडम ने और मोमिना मैडम ने बुलाया था, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ आपका, और बहुत ही सुंदर, यानी कि जो सीमा पे होता है वो पूरा सीन हमारे सामने खड़ा कर दिया, और हम सारे भावुक हो गए। बच्चों ने बड़ी मेहनत करके, मेरे ख्याल से करीबन ये 3 महीनों की मेहनत है। मिस्टर वेदांत बहुत अच्छे थे, समीना बहुत अच्छी थी, बहुत ही बच्चों ने सबने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। वेरी गुड। आप सबको बहुत बहुत बधाई, मिस्टर लाकड़ावाला को,
जैनब मैडम को और मोनिना मैडम को, सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई।